Rifat Shamim, Justice Isa protected the women's right of inheritance. In the famous Faizabad Dharna judgment, Justice Isa dilated upon the right to assembly and protest and the reasonable restrictions that may be imposed thereon. Importantly, Justice Isa noted that the right to protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. Justice Isa further held that intelligence agencies must operate within their mandate, and any transgressions into the realm of politics by these agencies must be held accountable. In September last year, Chief Justice Isa took oath as the Chief Justice of Pakistan. Since then, Chief Justice Isa has exhibited extraordinary judicial leadership. Upon taking office, Chief Justice Isa called a full court meeting after a long hiatus. Under his leadership, the Supreme Court collectively decided to live stream proceedings in cases of public importance, promoting transparency and accessibility for the masses. On the judicial side, Chief Justice Isa, without wasting time, upheld the constitutionality of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. In doing so, this court approved Parliament's decision to abolish the Chief Justice's absolute power to constitute benches and fix cases. This was a pivotal moment in our judicial history, and Chief Justice Isa's role in ensuring greater accountability and transparency within the judicial branch cannot be overemphasized. Another important contribution by Chief Justice Isa is his role in the conduct of general elections held on February 8, 2024. This court, under the leadership of the Chief Justice, paved the way for all stakeholders to agree on the set date for the conduct of general elections. This ensured that our country continues to tread the democratic path. There was yet another hurdle when the Lahore High Court, through order dated December 13, 2023, in writ petition 8083 of 2023, suspended notifications issued by the Election Commission of Pakistan, whereunder district returning officers and assistant returning officers were appointed. Had the suspension order of the Lahore High Court been allowed to hold the field, the general elections on February 8, 2024 would have been a virtual impossibility. Chief Justice Isa, without any delay, on 15 December 2023 suspended the Lahore High Court order and cleared the path to the general elections which were held, and our democracy was once again saved. In a nascent democracy like ours, the role of the apex judiciary is not only to preserve democratic values, but more often than not, it is to actively shield it from ever-evolving challenges. In his tenure, Chief Justice Isa saw democracy through a particularly turbulent time. Throughout his time on the bench, Justice Isa has promoted democracy, transparency, and accountability, not only generally, but also for himself and his own institution. I can say without hesitation, on the occasion of his retirement from bench, that his father, the late Qazi Muhammad Isa, one of the founding fathers of our country, would be proud. We wish him a happy retirement and hope that he will continue to serve democracy, rule of law, and constitutionalism post-retirement. Thank you very much. Thank you, Attorney General. Now I request Mr. Farooq Hamid Naik, Vice Chairman, Pakistan Bar Council, to deliver his speech. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Honorable Chief Justice of Pakistan, Justice Qazi Faiz Isa, Honorable Justice Yahya Afridi, Chief Justice Designate, Honorable Judges of the Supreme Court, Mr. Mansoor Usman Awan, Attorney General for Pakistan, Mr. Shehzad Shaukat, President, Supreme Court Bar Association, distinguished members of the Bar Councils and Bar Associations, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is both an honor and a privilege to stand before you today as we gather to bid farewell to an individual whose career exemplifies principles of justice, integrity, and judicial independence. Today's ceremony not only marks conclusion of Justice Qazi Faiz Isa's tenure as Chief Justice of Pakistan, but also reflects continuity of a tradition that strengthens our judiciary and reinforces its vital role in democratic fabric of our nation. This gathering is a moment to reflect
not just on remarkable contributions of Justice Faiz Isa, but also on the journey of our judiciary as a whole. Supreme Court stands as one of the three pillars that uphold the state alongside Parliament and Executive. The trichotomy of power ensures the rule of law remains at the heart of governance, safeguarding rights of people and sanctity of our Constitution. Since the birth of Pakistan, judiciary has played a crucial role in defining justice and governance. As one of the three pillars of state, alongside Parliament and Executive, it is entrusted with interpreting Constitution, protecting rights, and maintaining balance of power. Judiciary has evolved over time, adapting to societal changes while safeguarding rule of law. In its early years, judiciary worked within a legal framework inherited from colonial rule, gradually asserting its independence. Landmark decisions shaped democratic norms, though political pressures and executive overreach occasionally tested its autonomy. Yet, through these challenges, courts emerged stronger, ensuring civil liberties and justice in times of uncertainty. Independence of judiciary is the principle that judiciary should be free from outside interference and be able to make decisions fairly and impartially. This means judges should not be influenced by other branches of government, private interests, or partisan groups. Independence of judiciary is important because judges often decide matters between citizens and state or between state and powers of entities. In Pakistan, Article 2A of 1973 Constitution states that independence of judiciary should be fully secured. In Sharaf Faridi's case, Supreme Court explained that it is the duty of every judge to decide matters in conformity of facts and his understanding towards law without any influence and pressure. An independent judiciary is vital to protection of human rights. It is absolutely essential to resist undue influence and provide remedies for justice problems. Judiciary in Pakistan must provide an expeditious and inexpensive remedy in matters relating to ordinary litigants as well as matters relating to infringement of fundamental rights. Independence of Pakistan judiciary has changed over times, where judiciary used to defer to Pakistan's military by legitimizing martial laws and military dictators who were dominant actors in Pakistan politics. First Constitution of Pakistan, as passed by the Constituent Assembly, was framed in the year 1956, and preamble of the objective resolution could be termed as the grand norm of Constitution of Pakistan, which is incorporated, securing federalism, parliamentary form of government, independence of judiciary and social welfare state. Objective resolution, which was passed in the year 1949, became part of substantive constitution by incorporating Article 2A in the year 1985. Unfortunately, our military dictators did not allow Constitution of 1956 to function and abrogated the same in the year 1958, and that very insurgency derailed democratic system in Pakistan. This unlawful act of the military dictator was unfortunately upheld by Supreme Court of Pakistan in Dawson's case, reported as PLD 1958 Supreme Court 533. Another constitution was framed in the year 1962, which too was abrogated by another dictator in the year 1969 through an unlawful and unconstitutional act, where elections were held and democratic government came into being in 1971, in which Shahid Zulfikar Ali Bhutto became Prime Minister, who promulgated Constitution of 1973, fully based upon democratic principles as well as based on other clauses contained in previous constitutions. This constitution was smoothly functioning, but however, another dictator abrogated in the year 1977 and remained in power for more than a decade. Once again, Supreme Court upheld such abrogation in Begum Nusrat Bhutto's case. In Government of India Act 1935, there was no specific provision about persons who have to be consulted before appointment as federal court judges. According to Act 1935, they were appointed by His Majesty by warrant under Royal Sign Manual, and they could hold office until age of 65 years. Constitution of 1956 provided that Chief Justice of Pakistan shall be appointed by President and other judges shall be appointed by President after consultation with the Chief Justice. With regard to the appointment of High Court judges, under Constitution of 1956 it was laid down that every judge shall be appointed by President after consultation with Chief Justice of Pakistan, Provincial Governor, to which appointment
appointment related, and if appointment is not that of Chief Justice of High Court. Constitution of Pakistan 1962 provided that Chief Justice of Pakistan shall be appointed by President and other judges shall be appointed by President after consultation with Chief Justice. Whereas Constitution of 1962 provided that High Court judge shall be appointed by President after consultation with Chief Justice of Pakistan, Governor of Pakistan, province concerned, and Chief Justice concerned, where appointment is not that of Chief Justice. Since 1973, judicial system of Pakistan is being regulated under Article 175 of Constitution, which provides for establishment of Supreme Court and High Courts in each of the 4 provinces. Through an amendment to this article, High Court for Islamabad has also been established. Induction of High Court judges earlier was made on recommendations of respective Chief Justices after approval of provincial governor concerned. Thereafter, matter was sent to Chief Justice of Pakistan, and accordingly final approval was made by President through Federal Ministry of Law. This procedure was completely changed through 18th Amendment in Constitution of Pakistan by adding Article 175A, which provided for Judicial Commission comprising of judges of Supreme Court and High Courts, Federal Minister for Law and Justice, Attorney General for Pakistan, and representative nominee of Pakistan Bar Council and Provincial Bar Council. After nomination was made by Judicial Commission, matters was referred to Parliamentary Committee consisting of 4 members from Senate of Pakistan and 4 members from National Assembly. And out of these 8 members, 4 were to be taken from Treasury benches and 4 from opposition. Committee had power either to confirm nomination made by the Judicial Commission by majority of its total membership or may not confirm nomination by 3/4 of its total membership. Now, 26th Amendment to Constitution has been promulgated, which has merged Commission and Parliamentary Committee. However, under 26th Amendment, a woman or a non-Muslim other than Member of Parliament who is qualified to be a Member of Senate as a technocrat has been added in Judicial Commission. The role of civil society has been given. After promulgation of 26th Amendment, independence of judiciary is not infringed. Independence of judiciary is obvious from the fact that tenure is fixed and a judge cannot be removed except on grounds as mentioned in Article 209 of Constitution by Supreme Judicial Council comprising of judges of Supreme Court and High Court. Similarly is the case for removal of punishment of members of armed forces by courts established under the Pakistan Army Act 1952, and that also speaks about independence of institution of army. However, independence of parliamentarians is not secured. In case of inappropriate action by them, their removal or punishment is not by their own brother parliamentarians, but by judges. It is a historical fact that on false allegations which have been leveled against parliamentarians have led to the removal by judges of the past, and even governments were dismissed, and 2 prime ministers were removed through judgments of Supreme Court of Pakistan. Let us look into the mode of appointment of judges in superior courts in few other countries. In USA, justices of Supreme Court, Court of Appeal judges, and District Court judges are nominated by President and confirmed by US Senate. In Canada, justices of Supreme Court of Canada are appointed on Prime Minister's advice, and judges of provincial and territorial courts of appeal are appointed by provincial and territorial governments through judicial advisory committees, which are appointed by provincial and territorial government, in which there are nominees of government. In United Kingdom, there is a selection committee for selection process convened by the Lord Chancellor consisting of 5 members. In Australia, executive enjoys unfettered powers of judicial appointment. So, a Chief Justice holds a unique position in this evolution, not only for just interpreting laws, but also guiding judiciary through internal reforms and external pressures. Over years, each Chief Justice has left a distinct legacy, some reinforcing independence and others setting new constitutional precedents. Justice Qazi Faiz's tenure as Chief Justice demonstrated an unwavering commitment to transparency, judicial restraint, and rule of law. His leadership exemplified a careful balance of authority, contributing significantly to strengthening democratic principles and environmental governance. One hallmark of his tenure was his minimal use of suo motu powers, in stark contrast to his predecessors, who took dozens of such notices, on one with 60
54 and another with 57. Justice Issa used his power sparingly, reflecting his philosophy of judicial restraint and rejection of judicial activism, which he saw as critical to maintaining institutional balance. He was also a vocal opponent of judicial martial law, reinforcing judiciary's role in supporting democratic governance rather than intervening politically. Justice Issa rectified major unconstitutional decisions such as overturning lifetime disqualification of politicians under Article 62(1)(f) and addressing misinterpretations in Punjab government case related to Article 63A. His correction of historical wrongs also included revisiting Zulfikar Ali Bhutto's Shahid's case, restoring dignity of judiciary and rectifying past injustices. Another important achievement was his handling of election-related matters. Justice Issa prioritized democratic integrity, ensuring that 2024 elections are held on schedule despite obstacles. His rulings compelled institutions to act according to law, preventing undue delay through judicial intervention. Supreme Court, under Chief Justice Qazi Faiz Issa, formally resolved controversial dam fund issue by distancing judiciary from the project. Justice Issa ruled that responsibility for the project lies with the executive, while management of funds belongs to the State Bank of Pakistan. Court ordered transfer of collected funds around PKR 23.67 billion to public accounts of the Federation, ensuring transparency and proper state oversight. In environmental governance, his leadership was evident in rulings like Monal restaurant closure, where he underscored constitutional right to a clean environment. He framed environmental protection as essential to human dignity and ordered restoration of Margala Hills National Park with minimal disruption to wildlife. Justice Issa also presided over Faizabad Dharna case, which held various state agencies accountable for overstepping their roles. This bold decision reaffirmed the principle that armed forces and intelligence agencies must adhere to their constitutional mandates and avoid political interference. Through these contributions, Justice Issa has shown his ability to lead without overstepping his authority. He delegated powers to committee, avoided unnecessary administrative interference, and declined official protocol, ensuring that his tenure was marked by humility and fairness. His refusal to seek a tenure extension further exemplified his commitment to institutional dignity and principle that public office must be held in trust, not entitlement. And how can we forget Memo Gates, sir? Justice Issa's legacy lies not only in his judgment, but in his broader efforts to nurture judicial independence, promote transparency, and promote democracy. His tenure serves as a benchmark for future judicial leadership, inspiring a balanced approach towards justice and governance. A strong judiciary guarantees that no arm of state oversteps its authority, fostering accountability and ensuring justice for all. Under leaders like Justice Issa, judiciary has reinforced these principles by promoting transparency, independence, and timely decision-making, ensuring that democracy continues to thrive through fairness and impartiality. As we bid farewell to Justice Qazi Faiz Issa, I reflect not only on his significant contributions, but also on values he embodied through his career: integrity, courage, and an unwavering commitment to justice. His leadership has left a lasting impact on our judiciary, inspiring future generations to uphold transparency, fairness, and accountability. Justice Issa's tenure serves as a reminder that strength of our institution lies in those who lead with principle. As I said, his decision to retire without seeking extension is a testament to his belief in the dignity of public office. Your Lordship, Honorable Chief Justice of Pakistan, on behalf of the legal community, I extend our deepest gratitude to you for your tireless service. As you embark on this new chapter, we wish you peace, good health, and continued success. Your legacy will remain a guiding light for the judiciary and the nation in the years to come. Thank you, sir. Thank you, Farooq sir. I now request Mr. Shehzad Shaukat, President, Supreme Court Bar Association, to deliver his speech.
His Lordship, Mr. Justice Qazi Faiz, Chief Justice of Pakistan. His Lordship, the Chief Justice Designate, Justice Yahya Afridi. Honorable Judges of the Supreme Court of Pakistan. Learned Attorney General for Pakistan, Mr. Mansoor Usman Awan. Our very distinguished Vice Chairman of the Pakistan Bar Council, Mr. Farooq Naik. Honorable members of the Bar, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As His Lordship, the Chief Justice concludes his illustrious tenure as the Chief Justice of Pakistan, I, on behalf of the Supreme Court Bar Association of Pakistan, wish to extend our deepest respect and admiration for His Lordship's extraordinary contributions to the judicial landscape of Pakistan and the rule of law. Throughout his illustrious career, my Lord has exemplified integrity, impartiality, and unwavering commitment to the principles of justice and fair play. His Lordship's journey as a member of the Pakistan's legal fraternity spans over more than 4 decades, including 27 years as a practicing lawyer and a historic tenure as the Chief Justice of the Balochistan High Court. His ascent to the position of the Chief Justice of Pakistan reflects his legal acumen and dedication to the principles of justice. The landmark judgments delivered by His Lordship have left an indelible mark on our judicial landscape by safeguarding constitutional rights, promoting transparency, and applying the rule of law without fear and favor. My Lord Justice Qazi Faiz, you are a phenomenon that few could fully grasp. You are the first Chief Justice in Pakistan's history to have surrendered the discretionary powers of being the master of the roster to a committee established by an Act of Parliament, thereby upholding the supremacy of the Parliament in line with the constitutional mandate. Further, by focusing on the enforcement of laws and avoiding overreach into legislative prerogatives, the doctrine of separation of powers with the fundamental rights, which is fundamental to our constitutional framework, has been upheld. This approach reinforced the judiciary's role as an interpreter of law rather than the maker of law, which in turn had the effect of strengthening the pillars of our democracy. Your judgments in the cases like Faizabad Dharna highlighted your dedication to constitutional values, ensuring the protection of fundamental rights such as freedom of speech and expression, while also maintaining the importance of non-violence and peaceful assembly. Similarly, your meticulous handling of cases involving environmental protection, corruption, and government accountability has showcased your vision for a Pakistan that upholds fairness, integrity, and the rule of law. Additionally, your decision to definitively settle the issue of lifetime ban underscored your commitment to giving due weight to the actual text of laws and the Constitution. Not only did you decide old pending cases and references, but you also acknowledged the judiciary's mistake in Zulfikar Ali Bhutto's case by rendering an opinion in the Presidential Reference 1 of 2012. It was you, my Lord, who showed the willingness and courage to overturn bad law previously settled by the Supreme Court of Pakistan while interpreting Article 63A of the Constitution. We are all aware of the challenges you faced, including the 2019 presidential reference, which you courageously contested with utmost dignity. Your resilience in the face of adversity demonstrated the strength of character that defines you as one of the most respected figures in Pakistan's legal history. As you step down from your role, your legacy will continue to inspire generations of lawyers and judges. Your judgments, writings, and profound dedication to the public good will remain a cornerstone of Pakistan's judicial heritage. Your tenure is a testament to what it means to serve with honor and principle. On behalf of all those who have had the privilege to work alongside you and benefit from your wisdom, I wish you the very best in all your future endeavors. May your next chapter be as fulfilling and impactful as your time in the Supreme Court has been. Having said all this, I now take the opportunity to address the Honorable Chief Justice Designate, Mr. Justice Yahya Afridi, to highlight certain burning issues which I, on behalf of the Supreme Court Bar, have always endeavored to get resolved, being the representatives of the Bar. Firstly, may I once again request that immediate attention be paid to the delays in hearing of the cases, particularly stay matters.
which delay is a cause of huge unrest in the legal fraternity as also the general public. I have repeatedly pointed out that a possible solution to the above menace can be adequately addressed by restoring chamber hearings of stay matters which are duly envisaged by the Supreme Court Rules 1980. Both the counsel and the client would thus be satisfied that their case was taken up for hearing expeditiously and will add to the grace and dignity of this honorable court and will also help alleviate the plight of the ordinary litigant. I may also point out that despite my repeated efforts, this honorable court has not adverted to the idea of extending video link facilities to all the benches of the high courts within the country, which will not only save traveling cost confronting the clients, but will also avoid unnecessary adjournments both in this court as well as the high court concerned in which the counsel is practicing. I may also emphasize that the quality of the available video link proceedings has a lot of room for improvement, which I am sure my Lord will take up on the first priority. I have been also requesting that an online procedure for issuance of certified copies be adopted forthwith, which my Lord had already achieved as the Chief Justice of the Peshawar High Court. Under your able guidance, I am sure that the Supreme Court will move further towards e-filing and digitalization of the record. My Lord, the Chief Justice Designate, has always been a patient listener and has always carried a smile on his face, which I hope will not only remain, but will also spread to your colleague judges. I may also once again emphasize that the beauty, grandeur, and the dignity of the Supreme Court of Pakistan rest in its institutional unity and graceful traditions. As your lordships are aware that even my tenure is about to end. Hence, as a humble officer of the court, I beg all the lordships and the ladyship present to please sit down together and work harmoniously in the larger interests of this country and the nation. The Supreme Court Bar assures you that it will always be standing right next to you, and thus we will always be standing on the right side of the history. I thank you all, sir, and I am grateful to Justice Qazi Faiz sir for the wonderful time that I spent with him, and I am really saddened by his lordship's departure, and I wish you all the best in life, sir. Grateful. Thank you, Mr. Shehzad Shaukat. I now request Honorable Mr. Justice Yahya Afridi, Chief Justice Designate, for his speech. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Justice and my brother judges, Attorney General of Pakistan, Vice Chairman Pakistan Bar Council, President of the Supreme Court Bar Association, members of the bar, ladies and gentlemen. Sir, I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor and abruptness with which you always kept us on our toes. And at the same time, happy that you are leaving in good health and knowing that you will be able to enjoy your lovely family. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. To some, this might sound strange, but let me share with you, ladies and gentlemen, if you meet, greet, and treat Justice Qazi Faiz with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness, politeness, and care that it will leave you astonished, if not shocked. But mind you, if you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear,
then even hell hath no fury to match his scorn. And only God may help and save you. Let me share a secret with you all today, that I have faced such wrath of this bear many times. Ladies and gentlemen, let me tell you, the experience was not pleasant. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa, I have learnt a lot. Where many like me would keep quiet and feel shy to openly admit that they are not clear about legal proposition, Justice Qazi Faiz Isa openly admitted that he would require the assistance of the worthy counsel. But when it came to the rights of women, and more particularly cases relating to their inheritance, Justice Qazi Faiz Isa would leave no bounds to ensure the preservation of their rights, and that too with the full might of the court. On a lighter note, while sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa during the first half of the court proceedings, I often felt sorry for those across the roster, and at times had to salvage them from total devastation. But as the clock ticked past the half hour, the mood would change, and we would have a compassionate listening judge who sat through the day till the last case on the cause list was heard and decided. But I must acknowledge that while sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa on many occasions, we had differences. But let me tell you, he was always ready to hear my point of view, and was open to persuasion, a characteristic which very few possess, and one must strive to inculcate in ourselves. Now to my commitment, sir. This is a formal announcement that the farewell lunch today hosted by us in honor of Justice Qazi Faiz Isa is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. However, I have requested my brother judges to share the brunt. So we are going to share the brunt. But we wanted to host a lunch for Qazi Saab, and he was adamantly, stubbornly, he was in no mood to accept it. Finally, when we said we're going to commit ourselves, he has agreed. Now, as for what lies ahead, let me assure all that with the blessings of Allah Almighty, for the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured, be it a civil judge sitting in Boni Chitral or my brother judge sitting next to me today. The grievances of the bars shall be immediately attended to. Now I come to your request. It will be transgression on my part to commit any suggestions that you've made. But I promise you, 11:30 Monday, if you come to my chamber, we will discuss it, and hopefully we will pass appropriate orders. Okay. Now, immediate focus would have to be extended to the furthest districts. Jiwani in Balochistan, Tank in Khyber Pakhtunkhwa, Gotki in Sindh, and Sadiqabad in Punjab. I will pause here. You see, Peshawar, Lahore, Karachi, Quetta, they have the immediate attention of the high courts, the government. It is these furthest districts which deserve our attention, and the best of the best judges should go because they deserve them more than anyone else.
So the first priority would be, and I apologize, I had certain invitations extended to me last night, and I told them, I promise you, let me first handle these furthest districts, and then inshallah I'll come. We move on. Immediate attention would have to be rendered on facilitating attendances and cases of women, children, and disabled. Finally, improving the justice delivery process, be it automation, alternative dispute resolution, better case management, or human resource development. Ladies and gentlemen, this is a Herculean task. Let me tell you, I had the taste of it for a short while. And I tell you, this requires planning and patience from everyone. Planning from our side and patience from your side. With the complete support of not only my brothers at the Supreme Court, the keen interest of the Chief Justices and the judges of the High Court and the District Judiciary, but most importantly, the complete confidence of the Bar. May Allah Almighty render us all guidance and success in achieving this noble goal. Ameen. Sir, in the end, with fondest of memories and with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague, and our distinguished Chief Justice, Qazi Faiz. It will be cruel on my part not to mention Sarina Isa, wife of Justice Qazi Faiz, Seher Isa, the daughter, and his 3 loving grandchildren, Hana Lada, Sikandar Lada, Safia Lada, and I'm not going to forget Puddles, the poodle who kept us up during the summer afternoons. May Allah Almighty bless you and your family. Ameen. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I now request the Honorable Chief Justice of Pakistan for his address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. We've heard 4 speeches in English, so with your permission, I will switch to Urdu, because yesterday too I addressed the Bar, the Pakistan Bar Council and the Supreme Court Bar Association had a dinner, and the speeches were I spoke in English, so I'll just change and speak in Urdu, our national language. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए इस तकरीब में। फिर मैं बिलखसूस चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जस्टिस याया अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अपने दीगर साथियों का, जजेस का, सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच के मुअज़्ज़िज़ जजेस, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अटॉर्नी जनरल साहब का जो उन्होंने मेरे मुतालिक बातें कहीं, फिर फारूक नाइक साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का, और शहजाद शौकत साहब का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है, शुक्र है कि मेरी अहलिया आज मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने ये बातें सुनी, क्योंकि मैं उनको कहता कि मेरी तारीफ ही, तो उनको कोई इस पर एतबार नहीं करती। तो और एक और तो सब आप लोगों का शुक्रिया आने का, और दोस्तों का भी, वकीलों का, सहाफ़ियों का आने का शुक्रिया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं है। मैं कानून और आइन की आज नहीं बात करूंगा, मैं कुछ वो बातें बताऊंगा आपको जो शायद आपको पता ना हो, मगर ये सबसे पहले
शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मनसब संभालूं। शुक्रिया अवाम का, शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब का जिन्होंने मेरा इंतखाब किया चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था। एक आईनी बहरान पाकिस्तान में आ चुका था, कोई जज नहीं था, मैं वाहिद जज था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला। वकीलों ने मुझे सिखाया और उनकी मदद से अपने बलूचिस्तान के वकीलों से आगे बढ़े, जजेस अपॉइंट किए और एक गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ। बलूचिस्तान में बहुत सारा चीज़ें की। बलूचिस्तान से ही मेरा ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान ही में मैंने तालीम हासिल की, पहली से 10वीं तक। सीनियर कैम्ब्रिज वहाँ होता नहीं था तो इसलिए कराची गए। इसके बाद 10वीं के बाद मेरे वालिद की पैदाइश 30 मील दूर एक शहर है पिशीन, वहाँ हुई थी और उनके वालिद कंधार से हिजरत करके आए थे और इस दुनिया से चले गए जब वो मेरे वालिद की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मेरे वालिद बीत चले गए जब मैं सिर्फ 16 साल का था। अब मैं अपने ख़ानदान की ख़वातीन का ज़रा जिक्र करना चाहता हूँ। मेरी दादी, जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, जिनको हम अदे कहते थे, उनके 3 बेटे थे। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी मगर उन्होंने अपने जो एक बेवा पेशीन में रह रही हैं, अब आप इसको सोचिए, और ये 100 साल से पहले की बात है कि उन्होंने ये तयन किया कि मैं तीनों बच्चों को जो उस वक्त की सबसे बेहतर तालीम है वो दिलवाना चाहती हूँ। सबसे बड़े उनके बेटे काजी मूसा, वो एक्सेटर कॉलेज गए। उसके बाद मेरे वालिद काजी मोहम्मद ईसा इंग्लिस्तान मिडिल टेम्पल बार की डिग्री लेने के लिए गए और सबसे छोटे काजी इस्माइल वो पायलट बने। दोनों अपने चचाओं से मेरी मुलाकात नहीं हुई कि उनकी वफ़ात मुझसे पहले हो गई थी, मेरी पैदाइश से पहले हो गई थी। उस वक्त इंग्लिस्तान जाना आसान काम नहीं था। आपको पहले पेशीन से क्वेटर से फिर कराची 24 घंटे का रेल का सफ़र, फिर कई दिनों का समंदर का सफ़र जो आपको ले जाता इंग्लिस्तान। तो मेरे वालिद बलूचिस्तान में पहले बैरिस्टर थे और मैं भी उसी जगह से मैंने अपनी बार की जहाँ से उन्होंने जिसका इंतखाब किया था। 4 इंस ऑफ कोर्ट हैं। मिडिल टेम्पल का नाम कम सुना जाता है पाकिस्तान में, तो मैं भी मिडिल टेम्पल में गया। मेरे वालिद पहले बलूचिस्तान के बैरिस्टर थे और मेरी बेटी पहली खातून थी जो मिडिल टेम्पल से जिन्होंने बार किया। और मैंने भी, हम 3 जनरेशन एक ही इनसे हमने उन्होंने किया। बलूचिस्तान में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की। इससे पहले जब मैंने कहा ख़वातीन का अपना जिक्र करूं, मेरी वालदा ने मुझे कहा, एक ही नसीहत दी, आप डिग्री कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो। तो डिग्री जैसी मुझे हाथ में आई बार की, साथ साथ मेरी शादी भी हो गई। तो मेरी वाबस्तगी मेरी अहलिया और इस प्रोफेशन से बराबर की है, 42 साल की। सो 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हुए हैं और 42 साल से मेरी शादी को भी हुए हैं। तो हर बुरे अच्छे के साथ
साथ दिया गया। चीफ जस्टिस उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपने रजिस्ट्रार के ज़रिए डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद के एक दिन फ़ोन आया कि आपको चीफ जस्टिस साहब बुला रहे हैं। तो मैंने समझा पता नहीं खैरियत क्या बात हुई, क्योंकि मैं उस वक्त अंग्रेज़ी के अखबार में लिखता था, तो मैंने कहा शायद कुछ नागुज़ीर हुआ हो, लगा हो, तो शायद मुझे कोई शायद डांटा पड़ने के लिए। तो मैंने रिटर्न टिकट बुक किया उसी दिन का कि वापस आ जाऊंगा। तो वहाँ पे पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ बलूचिस्तान संभालो, वहाँ कोई जज नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी में वीटो पार मेरी अहलिया को है, और उस वक्त मेरे पार्टनर, उनसे मैंने कहा जी मैं जब तक वो नहीं हाँ करेंगे तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो दोनों ने एग्री किया, और फिर वहाँ से मैं बलूचिस्तान एकदम ज़िंदगी बदल गई रातों रात। और बलूचिस्तान, बल्कि चौधरी साहब ने मुझे कहा चले जाओ, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं तो अपना टूथब्रश भी नहीं लाया हूँ। तो खैर बलूचिस्तान गए, और फिर बलूचिस्तान में जो कुछ किया वो खैर हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों को पता है। बहुत सारे काम जिसका लोग मुझे सिला देते थे कि मैंने किया, उसके पीछे मेरी अहलिया थी। उनकी बस दो शर्त थी, एक कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा और कोई मुआवजा और किसी किस्म का कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक एरियाज़ में पार्क्स और उनके ठीक ठाक करना, यूनिफॉर्म बनाना वगैरह वगैरह, उन्होंने स्टेशनरी डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, बहुत सी चीज़ों में उन्होंने हाथ बटाया। और बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हम साथ गए, वो वाले डिस्ट्रिक्ट भी जो उस वक्त काफ़ी मसले हो रहे थे उधर, और मुझे कहा गया था कि ये मुनासिब नहीं आपका जाना। तो मगर वो उन्होंने, मेरी अहलिया ने इंसिस्ट किया, सरीना ने, और वो भी मेरे साथ आई। हमारे ड्राइवर होते थे शाबान, बेचारे का इंतकाल हो गया, हर जगह उन्होंने किया, और वो पता नहीं कितने चीफ जस्टिस के साथ रह चुके थे। एक दिन वो कहते हैं यहाँ तो मैं भी नहीं आया हूँ बलूचिस्तान में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं हंसा, मैंने कहा जी चलें कोई ऐसी जगह तो है कि जो मैंने आपको दिखाई और आपने मुझे नहीं दिखाई। छुट्टियां मैं करता था हमेशा, जब से यहाँ आया हूँ कुछ छुट्टियां कम की, मगर छुट्टियां जाने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि साथ में यहाँ सहर और उनके शौहर असद और उनकी बेटी सफ़िया, बेटा सिकंदर और हना थे। अब मेरे ख्याल में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे हैं और बच्चे हमें सिखाते हैं। एक दिन मुझे सफ़िया ने कहा कि मेरे दोस्त बहुत नाराज़ हैं मुझसे कि आपने मरगला हिल की पहाड़ी पे जो रेस्टोरेंट हैं आपने उनको मसमार करने का हुक्म दिया। तो मैं अब कुछ कहने ही वाला था, इससे पहले उन्होंने, सफ़िया ने मुझे कहा, मगर मैंने उनको कहा अल्लाह ताला ने जानवर भी बनाए हैं, उनका भी तो हमें ख्याल रखना है, परिंदे भी बनाए हैं, उनका भी तो हमें ख्याल रखना है, ये तो उनका घर है, हमने उनके घर में दाखिल हो गए। तो ये माहौलियात एक बहुत अहम मौजू है और इस पे हम सबको तवज्जो देना चाहिए और अपने बच्चों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगियां तो गुजर चुकी हैं, उनकी ज़िंदगियां सामने हैं और अगर माहौल ऐसा ना रहा रहने के काबिल तो ना सिर्फ जानवर परिंदे बल्कि इंसान खुद उनका रहना भी इस कायनात में मुश्किल हो जाएगा। मेरे एक साहबजादे भी हैं अरसलान, वो आए पाकिस्तान वापस, उन्होंने, मैंने कहा मुझसे कुछ ना करना, उन्होंने खुद मुलाजमत रखी, पकड़ी, लाहौर में उन्होंने कुछ अर्सा पढ़ाया, 75,000 उनको तनख्वाह मिलती थी। कहते बाबा मेरा इसमें गुजारा नहीं होता। मैंने कहा गुजारा करो। फिर वो मेरे ख्याल में शायद फिर उन्होंने वापस इंग्लिस्तान चले गए, उनसे भी मैंने काफ़ी मदद ली। एक दफ़ा बलूचिस्तान में मुझे याद है
हमारे रजिस्ट्रार कोई पोस्ट थी 9 ग्रेड या 11 ग्रेड की, तो मैंने कहा कि जी जब से जो सबसे 2 टॉप कैंडिडेट्स हैं फिर मुझे मिलाइएगा उनसे। तो एक आए, उन्होंने फरमाया कि मैंने किया है, मुझे पहले मालूम हुआ, मैंने CV देखा तो उसमें लिखा था मास्टर इन फिलॉसफी। मेरे बेटे ने भी मास्टर इन फिलॉसफी किया था, मुझे फिलॉसफी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो क्योंकि आपको पता है डिग्रियां कभी कभी कैसे ले ली जाती हैं, तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और पूछा कि मुझे आप 2-3 सवाल बताओ फिलॉसफी के जो मैं उनसे पूछ सकूं और उनके जवाब भी साथ साथ बताओ। तो उसने मुझे 2-3 सवाल बताए, क्या फ़र्क है, मॉडर्निज्म क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है, 1-2 और बातें। तो खैर वो सवाल पूछे गए और वो सही जवाब मिले उनसे। तो सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपके साथ जो आपकी मदद करने को हैं बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे साथ किन किन ने मेरी मदद की, और जैसे मेरे दोस्त या अफरीदी ने साहब ने कहा कि भालू कहेंगे या रीछ कहेंगे या ऐसा बेर कहते हैं खतरनाक रीछ है, रीछ के साथ गुजारा किया। उसमें फारूक साहब हैं, तौसीफ साहब हैं, साजिद साहब हैं, सरदार साहब हैं, और 2 लोग जो मेरे साथ मैंने जिनका इंतखाब किया कि वो मेरे साथ आएँ, और वो सिर्फ इस शर्त पे आने के लिए तैयार हुए कि जिस दिन आप जाएंगे उस दिन हम भी जाएंगे। तो उनका भी आज एक तरह से आप रेफरेंस ही समझिए। प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक, इनका मैंने इंतखाब किया जो मेरे सामने बैठे हैं, कि वो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी का इंतखाब किया, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये उनका बड़ापन है क्योंकि उनका ग्रेड कहीं ज़्यादा था बल्कि प्राइवेट सेक्रेटरी टू द चीफ जस्टिस से। और दूसरे बलूचिस्तान से मेरे साथ रहे हमेशा सादिक साहब, मोहम्मद सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में शायद वहाँ बैठे हैं। उन्होंने भी इसी शर्त पे कहा कि जिस दिन आप का रेफरेंस होगा उस दिन हमारा भी आखिरी दिन होगा। तो ये उनकी मैंने दोनों की शर्त कबूल की और मेरे साथ आए। मेरे पहला काम जो मैंने यहाँ किया था वो मेरी जो सही साबित हुआ वो इंतखाब करना था रजिस्ट्रार का, जजीला असलम साहिबा, और उन्होंने मेरा शायद प्यार का पहलू भी और रीच वाला पहलू भी दोनों देखे हैं, मगर शायद तो इस बात की गवाही दें कि कभी कोई ज़ातियात पे नहीं बात होती थी, इंस्टीट्यूशन की बेहतरी की बात होती थी। हम चेहरा सामने जो काम जो ये पेश कर रही हैं और इनसे पूछिए कि मैंने इनके कामों में कोई दखल नहीं किया, इनकी कॉज लिस्ट बनाने में कोई दखल नहीं किया। कॉज केस लगना है, कौन सा लगना है, मैंने कहा उनका काम, मेरा काम नहीं है, ये सब उन्होंने काम किया। फिर मैं एक और खातून का भी जिक्र करूं, हिना साहिबा कहाँ हैं? जी हिना साहिबा यहाँ हैं, जो उनसे मेरा इत्तेफाक ऐसे ही हुआ क्योंकि एक दिन जो मेरे पहले रीडर होते थे वो आए नहीं, तो इनको किसी ने भेजा मेरे सामने और ये बड़ी एफिशिएंट साबित हुई, तो फिर मैंने इनको अपने साथ एज माय रीडर रखा। अब मर्दों को ज़रा ख़तरा होना चाहिए कि ये कुछ ख़वातीन आगे निकल रही हैं, तो मैं आपको सिर्फ ज़रा आप लोग अपनी कारकर्दगी बेहतर कर लें, नहीं तो ये ना हो कि सारी ख़वातीन ही आपकी पोजीशंस पे आ जाएं। तो हिना साहब के मेरे रिसर्च ऑफिसर जो यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह बहुत ही काबिल हैं, और इससे पहले कि मैं उनको बताऊँ किसी मौजू पे और मैं बात कर रहा होता था तो मेरा उनको पता था मैं किस तरफ जा रहा हूँ, किताब मेरे सामने आ जाती थी। मेरे गार्ड फयाज जो मेरे हमेशा साथ रहे हैं, तारिक वसीम साहब रिसर्च ऑफिसर, मेरे कोर्ट क्लर्क्स जिनमें कबीर थे जो अब अमेरिका में हैं, हसन वो भी पढ़ने गए अमेरिका, अली, जैनब, नेहा और मरियम कुछ अरसे के लिए मेरे साथ आई। इन सब का मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आखिर में मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, जज की
वकील और जज की अहमियत। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। ये मुझे एक ख़त मिला, मैं बाहर का ख़त है, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए आया और 8 पाउंड से ज़्यादा इंग्लिस्तान से ख़त आया। तो मैं ये सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, ये नहीं कि मेरी तारीफ़ है, मगर इसमें सिर्फ ये ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि जज की कुर्सी कितनी अहम है और वकीलों का किरदार कितना इसमें अहम भी है। या मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैं ये पढ़ता हूँ इससे। आपको शायद याद ना हो, 2007 की बात है, जब मैं मेरी कुछ ज़ातियात और केस का नंबर बताती है, मुझे कुछ याद नहीं है कौन खातून है और ये केस क्या है। अभी मैं पढ़ता हूँ दोबारा। मैं बसे और मेरे 2 बच्चे कैम्ब्रिज में मुकीम हैं इंग्लिस्तान में, जहाँ मैं फुल स्कॉलरशिप पर PhD कर रही थी। मुझे आज भी वो खौफ और हरास की ज़िंदगी याद है। हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि आज या कल बच्चे छिन जाएंगे। अदालत में हमारा केस लगा, सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं था, तो मैं खुद सामने आई और सादा अल्फाज में मुद्दा बयान किया। आपने तसल्ली से मेरी बात सुनी। एक खौफ सा था कि आज क्या फैसला होगा। मेरी घबराहट देखते हुए आपने कहा, आप इत्मीनान रखिए, आपने फैसला लिखा। ये वो फैसला है जो आज तक मेरे और मेरे बच्चों के सरों पर ढाल बनकर खड़ा रहा। मैंने ना सिर्फ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में PhD हासिल की, बल्कि 2 साल वहाँ पढ़ाने के बाद 2021 से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर सीनियर लेक्चरर फाइज हूँ। मेरी बेटी, नाम नहीं बताऊंगा, इस साल यूनिवर्सिटी सिटी शुरू करेगी। वो वकील बनना चाहती है। मेरा बेटा अगले साल A लेवल्स करेगा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता है। हम अक्सर मिलकर आपकी अदालत के बारे में बातें करते हैं और मैं बच्चों को कहती हूँ कि काबिल, ईमानदार और खुदातर इंसान ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस जिंदगी के लिए कामयाबी का बायस बनते हैं जिनका गुजर उनके रास्तों से हो। पेशावर की गलियों, ब्रैकेट में लिखा है मेरा आबाई शहर, से निकलकर ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र मुश्किल तो था। हर आप जैसे ईमानदार मुनसफीन की मरून मिन्नत बखूबी तय हुआ। तो ये मेरे ख्याल में मैंने कोई ख़ास बात नहीं की, ये हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए हमें इंतखाब किया जाता है। और मैं जो इस खतूत में, ये आपके लिए नहीं है, ये अगर मेरे डिस्टिंग्विश कलीग्स के लिए है, और ये गुजाराना बात है, कोई रीच ये बात नहीं कर रहा है या अफरीदी साहब, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। और आखिर में बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। शुक्रिया बहुत बहुत। Thank you, sir. बहुत शुक्रिया, sir. Now I seek permission of the Honorable Chief Justice to conclude the proceedings and also request all the participants to witness the inaugural ceremony of the newly constructed Fundamental Rights Monument. Thank you, sir. Thank you, everyone. Proceedings stand concluded. चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस का सिलसिला जारी था, जिसमें जस्टिस काजी फैज ईसा ने खुद भी खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई थी। आपके दरवाजे पर होने वाली दस्तक महज एक दस्तक नहीं, आपके बच्चे के लिए सेहत की दस्तक।
इसलिए पोलियो वर्कर्स की इस दस्तक पर अपने घरों के दरवाजे खोलें। हमें आज के दिन ये अहद निभाना है, पाकिस्तान को पोलियो से बचाना। जब असल रिवायती रेसिपीज की सबसे बड़ी रेंज मिले तो रोज बढ़े आपके खानों की शान। शान, पाकिस्तान्स नंबर 1 रेसिपी मिक्सेस एक्सपोर्ट ब्रांड। आपके दरवाजे पर होने वाली दस्तक महज एक दस्तक नहीं, आपके बच्चे के लिए सेहत की दस्तक। इसलिए पोलियो वर्कर्स की इस दस्तक पर अपने घरों के दरवाजे खोलें। हमें आज के दिन ये अहद निभाना है, पाकिस्तान को पोलियो से बचाना। मेरा नाम मोहम्मद असगर खान है। मैं 6 माह की उम्र में पोलियो का शिकार हो गया था। मेरे लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल थी। इसके बावजूद मैं फिटनेस ट्रेनर बना। लिहाजा मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि पोलियो वर्कर जब भी आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे तो अपना दरवाज़ा उनके लिए ज़रूर खोलें। आइए हम सबको ये अहद निभाना है और पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बिना बताए बिना जताए साथ निभाए। ऐसे ही साथ निभाए फास्ट, तारों से सितारों तक। जब दांतों पर जरासीम हमला करते हैं तो हो जाती है सड़न। पर सड़न से हमारी हिफाजत कौन करता है? 2 की ताकत वाला नया क्लोव वाला स्पार्कल। लॉन की पावर और फ्लोराइड से मिले दांतों की सड़न से मुकम्मल हिफाजत। और दर्द की छुट्टी। स्पार्कल से दांतों की मुकम्मल हिफाजत हमेशा। पाकिस्तान कार्बन के इखराज में सबसे पीछे, फिर भी माहौलियाती तबाही से नुकसानात में सबसे आगे। आखिर क्यों? सैलाब, हीट वेव्स, तूफानी बारिशें, इन सब से कैसे निपटना है, ये जानना हर पाकिस्तानी का हक है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाएं, यही वक्त है। अभी नहीं तो कभी नहीं। Read Pakistan. A Dawn Media Initiative. Let's weather the change together. डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है। पाउडर बदलो, एक्सप्रेस पावर, धुलाई में बराबर, कीमत 150 रुपए कम। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल अब पूरे 80 रुपए कम। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम्स। डेटा बहुत है। अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। सुबकदोश चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और बार के नुमाइंदों की शिरकत। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने रेफरेंस में शरीक मेहमानों और शिरकत न करने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। आईनी हुदूद से तजावुज पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया का दिफा करना है। जस्टिस फैज ईसा अदालती हमाहंगी में नाकाम रहे। जस्टिस फैज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय दरवाजे मजीद खोले। अदलिया के दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। इनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कदर व इज्जत नहीं, अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की कमी महसूस करेंगे। जस्टिस फैज ईसा के साथ यादगार वक्त गुजारा। पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई अशाइया। जस्टिस याहिया अफरीदी को समझ नहीं सके, उनका लेवल बहुत ऊपर है। फुल कोर्ट में सब जजेस मौजूद थे, सबके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था।
जस्टिस याहिया के बारे में कहा गया कि उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फैसला देंगे। ये भी कहा गया कि जस्टिस याहिया जो भी फैसला देंगे आईन और कानून के मुताबिक होगा। लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट साल 2017 में धरना केस का फैसला दिया, सदारती रेफरेंस का सामना किया। चीफ जस्टिस बनने के बाद मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपने इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंपे। परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुनाते हुए सजा बरकरार रखी। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आर्टिकल 63 नजर सानी केस, जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसले भी तारीख का हिस्सा। सीनियरिटी के बजाय पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नामजद पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल ओहदा संभालेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 3 साल के लिए होगी। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर शाह का रास्ता रुका। इसमें हुकूमत का अमल दखल कम और पीटीआई का ज्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, उनके बारे में पीटीआई वाले कहते रहे, बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं और हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की बीबीसी से गुफ्तगू। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लाहौर से दुबई के लिए रवाना हो गए। साबिक वजीर आजम दुबई में 1 रोज कयाम के बाद लंदन चले जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका जाएंगे। 4 रोज कयाम के बाद वापस अमरीका आ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के हवाले से वजारत दाखिला को मिलने वाली सिक्योरिटी थ्रेट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की वकला से मुलाकात पर पाबंदी से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। बुशरा बीबी ने रिहाई के बाद पेशावर को ठिकाना बना लिया। बुशरा बीबी की आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान से मुलाकातें मुतवक्के। साबिक खातून अव्वल का शौकत खानम अस्पताल में चेकअप कराए जाने का इम्कान। फैसल वावडा ने बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा करार दे दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने डील की खबरें मुस्तरद कर दी। थाना कोहसार में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अलीमा और उज़मा खान की जमानत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जरदाज गुल की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 19 नवंबर तक तौसी। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। माशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की मावनत दरकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तिजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 अरब तक पहुँच जाएंगे। पांडा बॉन्ड चीन की बड़ी मंडियों में रसाई हासिल करने जा रहा है। तिजारती कर्जों के लिए मशरिक़े वस्ता बैंकों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी कंपनियों को हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाने की पेशकश कर दी। JP मोर्गन बैंक के नुमाइंदों को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायजा पेश किया। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में IDB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 1100 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 90,000 की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 1 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का बेल्जियम के सफीर से बाहमी ताउन के फरोग और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफीर ने मरियम नवाज की आवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा। मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात मुतासिर कुन करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने की दरखास्त। आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत अमरीका वफ्द भेजेगी। वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स और रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी शामिल होंगी। वजारत खारजा ने अमरीका के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे का प्रोपोजल शेयर कर दिया। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने अदालत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर। 23 और 24 अक्टूबर की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। पाक फौज के दस्तों ने 2 खुदकुश बमबार समेत 9 ख्वारिज और 1 हाई वैल्यू टारगेट को हलाक किया। हलाक ख्वारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में गैर मुल्की असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और फितनतुल ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल। अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मियांवाली में पुलिस से झड़प के दौरान 10 खारजी दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मियांवाली पुलिस टीम को खिराज तहसीन हीरो करार दे दिया। खैरपुर की सेशन कोर्ट के बाहर मुसल्लह मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग। पेशी पर आए 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। एक शख्स जख्मी हो गया। जामशोरों में घरेलू झगड़े के दौरान सुसर और सालों ने छुरियां मारकर दामाद को जख्मी कर दिया। पेशावर के इलाके चित्राल कॉलोनी में डकैती के दौरान मसाहिमत पर शहरी का कत्ल। अहले खाना और इलाका मकीनों का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। लाहौर पुलिस ने 3 माह का मुखवी बच्चा बाजियाब कराकर मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा 3 माह के अमार को दम करवाने के बहाने फैसलाबाद से अगवा करके लाहौर ले आई थी और बच्चे को अपना बेटा जाहिर किया था। फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे की तहकीकात के दौरान शाहदरा पुलिस ने मुल्जिमा को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA साइबर क्राइम सर्कल मुल्तान ने खानेवाल से मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती के इल्जामात पर झूठी मालूमात फैलाई। मुल्जिम ने झूठी मालूमात फैलाकर अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाया। FIA का बयान। इसराइली फौज ने गजा के जबालिया कैंप को खून से रंग दिया। फिजाई और जमीनी हमले में 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 10 से जायद रिहायशी इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया। टैंकों ने अदवान अस्पताल पर गोले बरसा दिए। मुतअद्दिद मासूम बच्चे शहीद हो गए। हमास का वफ्द जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। इसराइली वफ्द इतवार को दोहा जाएगा। इसराइली फौज की बैरूत पर बमबारी से 19 शहरी शहीद। मरने वालों में 3 सहाफी भी शामिल। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। जनूबी कोरिया में नामालूम अफराद का इसराइली सिफारत खाने पर धावा। मुश्तिल अफराद की शदीद नारेबाजी। इमारत को भी नुकसान पहुंचाया। मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला में नामालूम अफराद का भारतीय फौजियों की गाड़ी पर हमला। 2 भारतीय फौजियों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारतीय फौज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। पंजाब में सरकारी राजी पर गंदम की काश्त लाजमी करार। हुकूमत ने 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत।
गंदम बुआई मुहिम 1 ता 30 नवंबर तक जारी रहेगी। पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। 6 बैट्समैन पवेलियन लौट गए। सऊद शकील ने जिम्मेदाराना निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। रेहान और शुएब बशीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। और हॉलीवुड सीरीज दी एजेंसी की झलकियां जारी कर दी गईं। 19 नवंबर को रिलीज की जाएगी। धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। पाकिस्तान कार्बन के अखराज में सबसे पीछे, फिर भी माहौलियाती तबाही से नुकसानात में सबसे आगे। आएं और आलूदगी फैलाने वाले मुमालिक तक अपनी आवाज पहुंचाएं। उनसे अपना हक मांगे। मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए बाहर निकले। हमने उठाया है पहला कदम इस मुल्क के लिए, यहाँ रहने वालों के लिए। यही वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। Breathe Pakistan. A Dawn Media Initiative. Let's weather the change together. अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अहद आज तमाम हुआ। जस्टिस काजी फैज ईसा बतौर चीफ जस्टिस खिदमात अंजाम देने के बाद आज रात रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज में आज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, जिसमें जज साहिबान, सीनियर वकला, अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार के रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 5 जजेस ने शिरकत नहीं की। इस मौके पर खिताब में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत दीगर अफराद का शुक्रिया अदा किया। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए इस तकरीब में। फिर मैं बिलखसूस चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सब आप लोगों का शुक्रिया आने का और दोस्तों का भी। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आप आ सकते हैं, खुला है, दिन के वक्त भी खुला है और रात के वक्त भी खुला है। रात को बड़ी खूबसूरत बत्तियां इसमें लगाई गई हैं। तो मैं इन सब, एक तो अगर आप सब की एक मैं इनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस्मान खान साहब का और प्रोफेसर जाफरी साहब का, और अगर आप सबसे गुजारिश करूँ कि तालियां बजाएं। और फेडरल सेक्रेटरी, आपको पता है सरकार से काम करना कोई आसान काम नहीं होता है, और ये फेडरल सेक्रेटरी हमारे पंकज साहब हैं जो कि हाउसिंग एंड वर्क्स के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने भी भरपूर मदद की, और बाकी लोग उनका भी मैं जिक्र करूँगा जिन्होंने मदद की। इनमें सादिक, जिनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है पहले, इन्होंने रात भर 2-3 रातें तो मैं ख्याल में यहीं गुजारी, और उनके साथ नेहा है, उन्होंने भी बहुत मदद की इसमें। तो आप मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा कि शील्ड पेश करें, मुझे दें शील्ड। यार अभी एक दूसरे को पूछ देते हैं, लाइए ना। फिर अगर आप 1 घंटे में एक लाएगा तो इधर जाइए ना रखें। सर मैं बुला लेती हूँ, आप
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है और इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जिन लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है उनके हौसले को सराहता हूँ। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रात 12 बजे तक सुबकदोश हो जाएंगे और इस हवाले से तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अहद आज तमाम हुआ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस खिदमात अंजाम देने के बजाय आज रात रिटायर हो जाएंगे। गुज़िश्ता शब भी चीफ जस्टिस के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार ने अशाइया दिया। इस मौके पर सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को निहायत काबिल जज करार देते हुए कहा है कि इनसे बेशुमार तवक्कुआत वाबस्ता हैं। लोग हमें समझ गए मगर याहिया अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। वो जब केसेस सुनेंगे तो कम अज कम पहले से तो ये तो नहीं पता होगा कि फैसला क्या आएगा। काजी फाइज ईसा के जुमले पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। We should all try to emulate Justice Yahya Afridi. We have a great judge, Chief Justice for the future. We have all great expectations from him. And कम से कम एक बात तो पता नहीं होगी आपको, फैसला क्या होगा। Thank you very much. सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुबकदोश चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया है। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मिलनसार शख्सियत हैं, लेकिन उनके साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ता है। उन्हें इसका तजर्बा हुआ जो खुशगवार नहीं था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खवातीन और बच्चों के हुकूक को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इदारों के इख्तियारात में तवाज़ुन को बरकरार रखा जाएगा। इंसाफ की फराहमी में बेहतरी के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। इख्तियारात की तकसीम के उसूलों पर अमल दरामद होगा। If you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. Let me share a secret with you all today, that I have faced such wrath of this bear many times. Ladies and gentlemen, let me tell you, the experience was not pleasant. When it came to the rights of women, and more particularly cases relating to their inheritance, Justice Qazi Faiz Issa would leave no bounds to ensure the preservation of their rights, and that too with the full might of the court. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट के मौके पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने भी काजी फाइज ईसा की अदालती अहकामात पर और खिदमात पर रोशनी डाली और जमहूरियत के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। In September last year, Chief Justice Issa took oath as the Chief Justice of Pakistan. Since then, Chief Justice Issa has exhibited extraordinary judicial leadership. Under his lead, the Supreme Court collectively decided to live stream proceedings in cases of public importance, promoting transparency and accessibility for the masses. Another important contribution by Chief Justice Issa is his role in the conduct of general elections held on February 8, 2024. This court, under the leadership of the Chief Justice, paved the way for all stakeholders to agree on the set date for the conduct of general elections. This ensured that our country continues to tread the democratic path. फारूक एच नाइक ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुल्फिकार अली भुट्टो केस की तारीखी गलती को दुरुस्त करके अदलिया के वकार और इज्जत में इजाफा किया। इलेक्शन से मुताल्लिक मामलात को अहसन तरीके से निपटाया। जमहूरी इक़दार को हमेशा मुकद्दम रखा। इलेक्शन 2024 के वक्त पर इनेकाद के लिए कोशिशों को भी सराहा। Correction of historical wrongs also included revisiting Zulfikar Ali Bhutto's Shahid's case, restoring dignity of judiciary and rectifying past injustices. Another important achievement was his handling of election-related matters. Justice Issa prioritized democratic integrity, ensuring that 2024 elections are held on schedule despite obstacles. His rulings compelled institutions to act according to law, preventing undue delay through judicial intervention. We wish you peace, good health, and continued success. Your legacy will remain a guiding light for the judiciary and the nation in the years to come.
आपको इस हवाले से अपडेट करें कि फारूक एच नाइक की जानिब से भी कहा गया कि चीफ जस्टिस की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपको वाज़े तौर पर कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की तारीखी गलती को दुरुस्त करके अदलिया के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार को खत लिखकर फुल कोर्ट में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। खत में कहा गया है कि उन्होंने आईनी हुदूद से तजावुज़ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एहसास में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अदालती हम आहंगी में नाकाम रहे। उन्होंने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा नहीं किया। चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कदर और इज्जत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट से मुताल्लिक फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत दीगर जजेस शरीक हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शिरकत नहीं की। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। उमर, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के मौके पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया और इस फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, इसके अलावा वकला की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की फैमिली भी जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस में मौजूद थी। इसके अलावा आपको बताएं कि 5 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इज्तनाब किया, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। इसके अलावा आपको बताएं तो फुल कोर्ट रेफरेंस में 2 वफाकी शरई अदालत के जजेस, इसके अलावा 2 एडहॉक जजेस ने भी जो है वो शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस में सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अपने तकरीर की गई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक की जानिब से जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इक़दामात पर रोशनी जो है वो डाली गई। इसके बाद नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो थे उनकी जानिब से भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी फैमिली को भी खराज तहसीन पेश किया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुद भी जो है इस फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया और अपनी जुडिशरी में जितने भी मराहिल हैं, जितनी उन्होंने मंजिलें तय की, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितने इक़दामात किए, वो तमाम इक़दामात का जिक्र उन्होंने किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो है वो बहुत से ऐसे इक़दामात हमने किए जिससे अदलिया पर एतमाद जो है वो बढ़ा, उसमें इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से इक़दामात जो है उनकी जानिब से किए गए जो कि आज से पहले नहीं किए गए थे। मज़ीद आपको बताएं तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में एक इमारत का इफ्तिताह भी उनकी जानिब से किया गया और उन्होंने इस हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनका कहना था कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरह आवाम को इंसाफ फराहम करती रहेगी। जी उमर मेहताब। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट साल 2017 में धरना केस का फैसला दिया। सदारती रेफरेंस का सामना किया। चीफ जस्टिस बनने के बाद मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपने इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंपे। परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुनाते हुए सजा बरकरार रखी। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। फ़ाइज़ ईसा तहरीक इंसाफ की तनकीद की जद में रहे। मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर सुबुकदोश हो रहे हैं। उन्होंने अपने कैरियर में अहम फैसले सुनाए। साल 2017 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया। इसी फैसले के बाइस इख्तिलाफात शुरू हुए। बात जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस तक जा पहुंची।
फाइज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और नजरसानी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत की बुनियाद पर सदारती रेफरेंस को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फैसला किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंप दिए। परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुनाते हुए उन्हें सजा देने का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन, फुल कोर्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास की कार्रवाई को वेबसाइट्स पर जारी करने के अहकाम दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया और इंतखाबात न करवाने और रुकावट डालने के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 63A नजरसानी, जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसलों समेत जनरल फैज हमीद के खिलाफ आने वाली शिकायत पर भी हिदायत जारी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खवातीन के विरासत में हिस्से को यकीनी बनाने के हवाले से भी मुख्तलिफ मुकदमात में अहम फैसले सुनाए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इस्लामाबाद में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बानी PTI की बहनों अलीमा और उस्मा खान की जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने दोनों बहनों को 20-20 हज़ार रुपये मचल के जमा कराने की हिदायत की। बानी PTI की बहनों उस्मा खान और अलीमा खान की रिहाई की रूपकार जारी कर दी गई। बानी PTI की बहनों के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज था। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। जब असल रिवायती रेसिपीज की सबसे बड़ी रेंज मिले तो रोज बढ़े आपके खानों की शान। शान, पाकिस्तान's #1 recipe mixes export brand. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। भाईजान सुबह कंपटीशन है, सब तैयारी हो गई? अच्छा सुन, a black hole is like a cosmic vacuum cleaner that is so powerful that it can suck in everything from dust to gases to even light if it gets too close. It never gets full, nor does it need to be emptied. स्टिंग, टेस्ट भी तेज भी। आज मैं इसे कुछ कह क्यों नहीं रही ताकि ये कल खुद उठना सीखे। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बढ़ते स्कूल एज चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रहेंगी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। नवाब साहब, तुम्हारी उम्र में मैं 2 नौकरियां करता था। दो। बड़े भैया के लेक्चर will only give a brain fracture. So my dear, हार्ट बीट्स की बाइट लो और सिचुएशन को लाइट लो। इतने मजेदार लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बिग फ्रेंड्स हॉट बीट्स, बाइट लो लाइट लो। अद्धी रात है, ना बंदा ना बंदे दी जात है, कड ले गड्डी। कुछ ड्रोना आ गया ना ते पैक हो जानी है। और चिल कर यार। स्टिंग, टेस्ट भी तेज भी। पराठा पार्टी करूंगा, सैंडविच से पेट भरूंगा। अरे मारे गए। कनॉन नूडल्स के 4 पैक्स अब सिर्फ 199 रुपए में। होगा 199 रुपए का, मुझे क्या। न्यू डाल्डा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू कुक। हम माँ की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उसके एफर्ट्स को स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही सकते हैं। न्यू डाल्डा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थे, कोई भी स्टाइल करो पिक। आपके पाउडर से या एक्सप्रेस पावर से? कड़क चाय का दाग है, महंगा पाउडर ही लगेगा। चलें देखते हैं। सीम सफाई, वो भी 150 रुपए कम में। मैं तो सोच दी सी। आंटी, सोच बदलो, पाउडर बदलो। एक्सप्रेस पावर, धुलाई में बराबर, कीमत 150 रुपए कम। स्टिंग, टेस्ट भी तेज भी। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे।
Trust me, keratin smooth. आज मैं इसे कुछ कह क्यों नहीं रही, ताकि ये कल खुद उठना सीखे। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बढ़ते स्कूल एज चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रहेंगी। नीडो न्यूट्रिशन टू ग्रो फ्रॉम नेस्ले। जब दांतों पर जरासीम हमला करते हैं तो हो जाती है सड़न। पर सड़न से हमारी हिफाजत कौन करता है? 2 की ताकत वाला नया क्लोव वाला स्पार्कल। बहुत तेज खेल रहे हैं यार। चीट कोड लगाया हुआ है। स्टिंग टेस्ट भी तेज भी। इस वुमेन्स क्रिकेट सीजन कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ लेट्स बैक हर ड्रीम। पैक पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, अपनी बेटी की पिक्चर अपलोड करें, AI की मदद से पोस्टर जनरेट करें एंड ऑल्सो गेट अ चांस टू विन अ स्पेशल कैडबरी डेयरी मिल्क पैक फॉर हर। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। बिग फ्रीन्स हॉट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बिग फ्रीन्स हॉट बीट्स, बाइट लो, लाइट लो। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, keratin smooth. Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है समझदार माँ और दादी का इंतखाब नेस्ले सेरेलैक। तो इस वुमेन्स क्रिकेट सीजन क्यों ना कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। एक मुनासिब कीमत पर इत्तेफाक करें जो दोनों के लिए बेहतर हो। इन ड्राइव। हो सकता है बेपना फैसले गलत किए हों। वकील और जज दोनों का किरदार अहम है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदेमंद और दूसरे के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। इलेक्शन 2024 के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार नाकाबिले फरामोश है। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भुट्टो केस में तारीखी गलती दुरुस्त करके अदलिया के वकार में इजाफा किया। फारूक एच नाइक का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। एक बढ़ते बच्चे को इतनी ग़िज़ाइयत की जरूरत होती है, इन सब की ग़िज़ाइयत एक साथ खिला सकती हो? इसके मुट्ठी जितने पेट में ये कैसे आएगा अम्मी? ऐसे, क्योंकि सेरेलैक में गंदम, चावल और फलों के साथ शामिल है आयरन, विटामिन्स और प्रोबायोटिक्स भी, जिससे बढ़ते बच्चों को मिले ठोस और सही ग़िज़ाइयत। बेबी को रोज सेरेलैक भी खिलाना कितना जरूरी है। समझदार माँ और दादी का इंतखाब नेस्ले सेरेलैक फ्रॉम नेस्ले। इस वुमेन्स सीजन कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ लेट्स बैक हर ड्रीम। पैक पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, अपनी बेटी की पिक्चर अपलोड करें, AI की मदद से पोस्टर जनरेट करें एंड ऑल्सो गेट अ चांस टू विन अ स्पेशल कैडबरी डेयरी मिल्क पैक फॉर हर। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल से रिहाई के बाद बनीगाला के बजाय पेशावर में रिहाइश का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी कुछ अरसे के लिए CM हाउस पेशावर की एनेक्सी में कयाम करेंगी। सेनेटर फैसल वावडा ने एक बार फिर बुशरा बीबी की रिहाई को डील का नतीजा करार दिया। PTI ने डील के नतीजे में बुशरा बीबी की रिहाई का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जवाब दिया कि डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं।
बुशरा बीबी ने रिहाई के बाद पेशावर को मस्कन बना लिया। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल से रिहाई के बाद साबिक खातून अव्वल बनी गाला पहुंची, जहां पार्टी क़यादत के मशवरे पर बानी पीटीआई की अहलिया ने कुछ अरसे के लिए पेशावर में सकूनत इख्तियार करने का फैसला किया। बुशरा बीबी को अटक पुल से प्रोटोकॉल के साथ वजीर आला हाउस ले जाया गया। कारकुनों ने पुरतबाक खैर मकदम किया। बुशरा बीबी की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान से मुलाकातें मुतवक्के हैं। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल में चेकअप के लिए जाने का भी इम्कान है। बुशरा बीबी कुछ अरसे के लिए सीएम हाउस की एनकेसी में कयाम करेंगी। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल वाडा ने एक बार फिर बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे डील का मौक़िफ़ दोहराया। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू में दावा किया कि ऐसी डील की है जिसका बानी पीटीआई को फायदा नहीं होगा। कैसे इनको पता था कि 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पहले से ही बनी गाला के अंदर पेंट और रोगन होना शुरू हो गया, जो 12 साल से नहीं हुआ था। उस आदमी को बेचकर, उस आदमी को एक सियासी जहन्नुम की आग में फेंक कर, जिस डील के अंदर, इस तासुर के अंदर उनके लिए कुछ नहीं है, सब निकल गए। क्योंकि बच्चों के हाथों लोग मजबूर होते हैं, जो कपड़ों से ज्यादा करीब है इमरान खान साहब के, वो भी बच्चों के आगे मजबूर हो जाते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई ने फैसल वावडा के दावे की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है। लोगों के इल्जामात को मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट नहीं दिया करते। खान साहब का हम पे एतमाद है और हम दिन रात खान साहब के लिए लगे। हम लोगों की स्टेटमेंट को इन्हीं किस्म की स्टेटमेंट को दे के अपने बयानियां नहीं चेंज करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सारे लोग जो है वो खान साहब की जो है क़यादत में वो मुत्तहिद है। बुशरा बीबी को 267 दिन बाद अडियाला जेल से रिहाई मिली है। इन 9 माह के दौरान उनको मजमूई तौर पर 15 केसेस में रिलीफ मिला। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी वजीर आला हाउस पेशावर में मौजूद हैं। उनके लिए वजीर आला हाउस में अलग स्टाफ मुकर्रर किया गया है। साबिक खातून अव्वल पेशावर में कुछ अरसा कयाम करेंगी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे आरिफ हयात से। आरिफ, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया पेशावर पहुंच गई है और वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में मौजूद है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात ने भी बयान जारी किया हुआ था कि बुशरा बीबी जो है तो वो पेशावर में कुछ अरसे के लिए क़याम करेंगी। पार्टी के जो कुछ अहम रहनुमा हैं तो उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है और यहाँ पर जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं तो उन्होंने उसका मेडिकल चेकअप भी किया हुआ था। आज सूरत हाल है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हाउस में मौजूद हैं और उनके लिए अलग सा जो स्टाफ है तो वो मुकर्रर किया गया है, जो उनके तमाम उमूर वही स्टाफ ही देखेगी। बुशरा बीबी के लिए सीएम हाउस में अलग स्टाफ मुकर्रर किया गया है। अपडेट कर रहे थे आरिफ हयात, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस निपटा दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने फैसल चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि 3 वकला की बानी पीटीआई के साथ 1 घंटे से जायद की मुलाकात करा दी गई है। इस्तदा है कि तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी जाए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने वकील फैसल चौधरी से इस्तफसार किया कि क्या आप मुतमईन हैं, जिस पर एडवोकेट फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि अदालत का इत्मीनान ही उनका इत्मीनान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 90,000 का संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 1,147 पॉइंट्स के इजाफे से 90,000 की तारीखी हद उबूर कर गया। IMF से मुआहदे और शरह सूद में मुमकिना कमी की खबरों से सरमायाकारों में एतमाद पाया जाता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। 10 मिनट में आ रहा हूं। So many mistakes. Fix it, please. चाय? गया नहीं अभी तक? नहीं, तेरी लेट सीटिंग है ना। थैंक्स। ख्वाहिशों को उड़ान दे वो अनकही सब। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बिना बताए, बिना जताए साथ निभाए। ऐसे ही साथ निभाए फास्ट, तारों से सितारों तक। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. खुशी तो सबको साथ लेके चलती है, जैसे नई सुजुकी एवरी 3 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ।
हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। टेस्ट भी तेज भी। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है और इसके बाद आप अपनी मनपसंद चीजें और खाने एंजॉय कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल, क्योंकि ये फौरी असर करता है। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। बिग फ्रीज हॉट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बिग फ्रीज हॉट बीट्स, बाइट लो, लाइट लो। भाईजान सुबह कंपटीशन है, सब तैयारी हो गई? अच्छा सुन, a black hole is like a cosmic vacuum cleaner that is so powerful that it can suck in everything from dust to gases to even light if it gets too close. It never gets full, nor does it need to be emptied. Sting! टेस्ट भी तेज भी। इस विमेंस क्रिकेट सीजन कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ लेट्स बैक हर ड्रीम। पैक पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, अपनी बेटी की पिक्चर अपलोड करें, AI की मदद से पोस्टर जनरेट करें एंड ऑल्सो गेट अ चांस टू विन अ स्पेशल कैडबरी डेयरी मिल्क पैक फॉर हर। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। टेस्ट भी तेज भी। एक बढ़ते बच्चे को इतनी ग़िज़ाइयत की जरूरत होती है, इन सब की ग़िज़ाइयत एक साथ खिला सकती हो? इसके मुट्ठी जितने पेट में ये कैसे आएगा अम्मी? ऐसे, क्योंकि सेरेलैक में गंदम, चावल और फलों के साथ शामिल है आयरन, विटामिन्स और प्रोबायोटिक्स भी, जिससे बढ़ते बच्चों को मिले ठोस और सही ग़िज़ाइयत। बेबी को रोज सेरेलैक भी खिलाना कितना जरूरी है। समझदार माँ और दादी का इंतखाब नेस्ले सेरेलैक फ्रॉम नेस्ले। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। बहुत तेज खेल रहे हैं यार। चीट कोड लगाया हुआ है। स्टिंग! टेस्ट भी तेज भी। Knorr laya new fusion Korean kimchi ramen. So get ready to raise your chopsticks. जब दांतों पर जरासीम हमला करते हैं तो हो जाती है सड़न। पर सड़न से हमारी हिफाजत कौन करता है? 2 की ताकत वाला नया क्लोव वाला स्पार्कल। सुनसान पहाड़ है यार, तेज चला ले। सुने यहाँ पर इंसानों के अलावा भी बहुत कुछ है। चलकर पहाड़ों को एंजॉय कर। स्टिंग! टेस्ट भी तेज भी। तेरे मेरे साथ से नहीं कुछ भी ऊपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। जब असल रिवायती रेसिपीज की सबसे बड़ी रेंज मिले तो रोज बढ़े आपके खानों की शान। शान, पाकिस्तान नंबर 1 रेसिपी मिक्सेस एक्सपोर्ट ब्रांड। नहीं सुनिए, ना कर दरिया पार, रहेंगे राब्ते में 24 घंटे यार। माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। ओए नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. चलो भाई, सिर्फ 600 रुपए में। मैं 570 में ले जाऊंगा। 550 में देसी। ब्रो, सिर्फ 500। ऑफिस से घर जाना महंगा पड़ गया। सेम राइड ओनली ₹450 विद यांगो। लाइफ में लगेगा इंक्रीमेंट जब बचत होगी विद यांगो। हर रूट पे सबसे कम रेट गारंटी। यांगो, लोएस्ट प्राइस गारंटीड। नहीं सुनिए, ना कर दरिया पार, रहेंगे राब्ते में 24 घंटे यार। माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। ओए नहीं पगली,
मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सबरोसो चिकन चीज पराठा, इतना टेस्टी, इतना फुलफिलिंग कि देखते रह जाओगे। आपके दरवाजे पर होने वाली दस्तक महज एक दस्तक नहीं, आपके बच्चे के लिए सेहत की दस्तक। क्या आप अपने बच्चे को जिंदगी भर बैसाखी पे चलता हुआ देख सकते हैं? मेरा नाम आयशा है, मैं खुद पोलियो वर्कर हूं और मैं घर घर जाकर कतरे पिलाती हूं। जो लोग मुझे मना करते हैं मैं उन्हें समझाती हूं कि पोलियो का कोई इलाज नहीं, क्योंकि मैं खुद पोलियो का शिकार हूं। आपका गलत फैसला आपके बच्चे को उम्र भर के लिए माजूर कर सकता है। इसलिए पोलियो वर्कर्स की इस दस्तक पर अपने घरों के दरवाजे खोलें। हमें आज के दिन ये अहद निभाना है, पाकिस्तान को पोलियो से बचाना। पराठा पार्टी करूंगा, सैंडविच से पेट भरूंगा। अरे मारे गए। कनौर नूडल्स के 4 पैक्स अब सिर्फ 199 रुपए में। होगा 199 रुपए का, मुझे क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। पराठा पार्टी करूंगा, सैंडविच से पेट भरूंगा। अरे मारे गए। कनौर नूडल्स के 4 पैक्स अब सिर्फ 199 रुपए में। होगा 199 रुपए का, मुझे क्या। New Dalda Stand-Up Pouch. Easy to pour, easy to cook. A standing ovation to mothers. अद्धी रात है, ना बंदा ना बंदे दी रात है। कड ले गड्डी, कुछ ड्रोना आ गया ना ते पैक हो जानी है। पर चिल कर यार। स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। नवाब साहब, तुम्हारी उम्र में मैं 2 नौकरियां करता था। दो। बड़े भैया के लेक्चर विल ओनली गिव अ ब्रेन फ्रैक्चर। सो माय डियर, हार्ट बीट्स की बाइट लो और सिचुएशन को लाइट लो। इतने मजेदार लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बिग फ्रीन्स हॉट बीट्स, बाइट लो, लाइट लो। इस विमेंस क्रिकेट सीजन कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ लेट्स बैक हर ड्रीम। पैक पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, अपनी बेटी की पिक्चर अपलोड करें, AI की मदद से पोस्टर जनरेट करें एंड ऑल्सो गेट अ चांस टू विन अ स्पेशल कैडबरी डेयरी मिल्क पैक फॉर हर। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। पहली बार बहू को लेकर जा रहे हो, खैर से जाओ। चले। एयरबैग्स और ABS के साथ अब हर सफर में हिफाजत साथ चलेगी। खुशी सबकी लेके चली रे। बिग फ्रीन्स हॉट बीट्स, इतने मजेदार लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बिग फ्रीन्स हॉट बीट्स, बाइट लो, लाइट लो। Hey, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज that has vitamin C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। Get your रोज का डोज। Give your best हर रोज। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together.
खेल के मैदान से आपको खबर दें कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात से दो चार है। 7 अहम विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान ने आज दूसरे रोज 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन से इनिंग्स शुरू की तो शान मसूद 26 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने 25 और आगा सलमान सिर्फ 1 रन बना सके। इंग्लैंड के रेहान अहमद ने 3 और शुएब बशीर ने 2 विकेटें ली हैं। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 187 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 80 रन दरकार हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी ने कहा है कि हर बड़े प्लेयर पर बुरा वक्त आता है। बाबर आजम पर भी बुरा वक्त आया हुआ है। उम्मीद है वो जल्द वापस आकर भरपूर परफॉर्म करेंगे। Well, again, I cannot answer that because I'm not a selector. But what I will say is that Bubba is a fine player, and I think he's one of the best players in the world. And yeah, he had a bit of a lean patch, but I don't think there's many great players around Bordy that have never had a lean patch. And I'm very confident Bubba will be back scoring a lot of runs for Pakistan in all formats. He's just too good a player. Works really hard at his game. He's very precise with his preparation and what he needs to do to get ready. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक वनडे कप में 1 रन पर 8 विकेटें गिर गईं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम 52 पर 2 खिलाड़ी आउट के बाद 53 पर ऑल आउट हो गई। तस्मानिया ने 54 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। Half century. And he's bowled him! Well, it flies off the edge. Another nick, and this time he does catch it. Well, that's a nick behind. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए डॉन न्यूज। लोग कहते रहे चूज वन, म्यूजिक या मेडिसिन। मैंने कहा दोनों। क्या करूं? स्टेथोस्कोप और माइक्रोफोन दिल की बीट दोनों से जुड़ी थी और मेरी दुनिया भी। नेस्कैफे, बनाओ अपनी दुनिया। दुनिया के कोने कोने से हम चुनते हैं सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी अज्जा, जिससे असल रिवायती जायका बने। हर किचन की शान। शान, पाकिस्तान नंबर 1 रेसिपी मिक्सेस एक्सपोर्ट ब्रांड। बिग फ्रीन्स हॉट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बिग फ्रीन्स हॉट बीट्स, बाइट लो, लाइट लो। पराठा पार्टी करूंगा, सैंडविच से पेट भरूंगा। अरे मारे गए। कनॉन नूडल्स के 4 पैक्स अब सिर्फ 199 रुपए में। होगा 199 रुपए का, मुझे क्या। सुनसान पहाड़ है यार, तेज चला ले। सुने यहाँ पर इंसानों के अलावा भी बहुत कुछ है। चलकर पहाड़ों को एंजॉय कर। स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। ये सब मुमकिन है जब आप करेंगे सपोर्ट अपने बच्चे की बढ़ती हुई बॉडी और माइंड को। नेस्ले लैक्टोग्रो में मौजूद है एक्टिव ग्रो, जिसमें शामिल है टबी के लिए प्रोबायोटिक्स और वो न्यूट्रिएंट्स जो सपोर्ट करें उसकी बढ़ती बॉडी और माइंड को, ताकि इसे मिले ग्रोथ में मदद और आपके बच्चे करें ग्रो विद एक्टिव ग्रो फ्रॉम नेस्ले। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। बहुत तेज खेल रहे हैं यार। चीट कोड लगाया हुआ है। स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नया लाइफबॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश अब विटामिन्स के साथ। ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। सिर्फ क्रीम नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 सीरम क्रीम। इसका एडवांस्ड मल्टीविटामिन सीरम गहराई तक जाए, दाग धब्बे घटाए और रोजाना इस्तेमाल दे 3 गुना ग्लो। 1, 2, 3 गुना ग्लो। ग्लो एंड लवली। New Dalda stand-up pouch. Easy to pour, easy to cook. A standing ovation to mothers. सुनसान पहाड़ है यार, तेज चला ले। सुने यहाँ पर इंसानों के अलावा भी बहुत कुछ है। चलकर पहाड़ों को एंजॉय कर।
टेस्ट भी तेज भी। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है और इसके बाद आप अपनी मनपसंद चीजें और खाने एंजॉय कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल, क्योंकि ये फौरी असर करता है। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। भाईजान सुबह कंपटीशन है, सब तैयारी हो गई? अच्छा सुन, a black hole is like a cosmic vacuum cleaner that is so powerful that it can suck in everything from dust to gases to even light if it gets too close. It never gets full, nor does it need to be emptied. स्टिंग, टेस्ट भी तेज भी। खुशी तो सबको साथ लेके चलती है, जैसे नई सुजुकी एवरी 3 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ। चलो भाई, सिर्फ 600 रुपए में। मैं 570 में ले जाऊंगा। 550 में देसी। ब्रो, सिर्फ 500। ऑफिस से घर जाना महंगा पड़ गया। सेम राइड ओनली ₹450 विद यांगो। लाइफ में लगेगा इंक्रीमेंट जब बचत होगी विद यांगो। हर रूट पे सबसे कम रेट गारंटीड। यांगो, लोएस्ट प्राइस गारंटीड। सबरोसो चिकन चीज पराठा, इतना टेस्टी, इतना फुलफिलिंग कि देखते रह जाओगे। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बिना बताए, बिना जताए साथ निभाए। ऐसे ही साथ निभाए फास्ट, तारों से सितारों तक। ओलिविया मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग मिल्क लोशन मेरी स्किन को रखे हेल्थी, मॉइस्चराइज्ड एंड ब्यूटीफुल। ओलिविया, शुक्रिया। पैक पर नया झिलमिलाता लेबल और पैक की पिछली जानिब झिलमिलाते लेबल के साथ स्टिकर पर ओरिजिनल लिखा हुआ जरूर देखें, जो कि असली ओलिविया मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग मिल्क लोशन की पहचान है। जब दांतों पर जरासीम हमला करते हैं तो हो जाती है सड़न। पर सड़न से हमारी हिफाजत कौन करता है? 2 की ताकत वाला नया क्लोव वाला स्पार्कल। लॉन्ग की पावर और फ्लोराइड से मिले दांतों की सड़न से मुकम्मल हिफाजत। और दर्द की छुट्टी। स्पार्कल से दांतों की मुकम्मल हिफाजत हमेशा। पाकिस्तान कार्बन के इखराज में सबसे पीछे, फिर भी माहौलियाती तबाही से नुकसानात में सबसे आगे। आखिर क्यों? सैलाब, हीट वेव्स, तूफानी बारिशें, इन सब से कैसे निपटना है, ये जानना हर पाकिस्तानी का हक है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाएं, यही वक्त है। अभी नहीं तो कभी नहीं। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है। पाउडर बदलो, एक्सप्रेस पावर, धुलाई में बराबर, कीमत 150 रुपए कम। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल अब पूरे 80 रुपए कम। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम्स। डेटा बहुत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। सुबुकदोश चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों, चीफ जस्टिस का खिताब। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की फुल कोर्ट रेफरेंस में अदम शिरकत। चीफ जस्टिस ने मेहमानों और शिरकत ना करने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे। जस्टिस फाइज ईसा के साथ यादगार वक्त गुजारा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब।
इलेक्शन 2024 के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार नाकाबिले फरामोश है। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भुट्टो केस में तारीखी गलती दुरुस्त करके अदलिया के वकार में इजाफा किया। फारूक नाइक का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई अशाइया। जस्टिस याहिया अफरीदी को समझ नहीं सके, इनका लेवल बहुत ऊपर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नामजद पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल ओहदा संभालेंगे। आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 3 साल के लिए होगी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लाहौर से दुबई के लिए रवाना हो गए। साबिक वजीर आजम दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन चले जाएंगे। बुशरा बीबी की तबीयत नासाज, इन्फेक्शन की वजह से कान से खून आ रहा है। साबिक खातून अव्वल के आज मजीद टेस्ट होंगे। तर्जमान मिशाल यूसुफजई का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस निपटा दिया। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। माशी दबाव से निकलने के लिए तकरीबन $1 अरब की मुआवनत दरकार है। वजीर खजाना की गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 90,000 की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। और पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को मुश्किलात। दूसरे रोज खाने के वक्फे तक 7 बैट्समैन पवेलियन लौट गए। सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग। धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम, इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। पाकिस्तान कार्बन के अखराज में सबसे पीछे, फिर भी माहौलियाती तबाही से नुकसानात में सबसे आगे। आएं और आलूदगी फैलाने वाले मुमालिक तक अपनी आवाज पहुंचाएं। उनसे अपना हक मांगे। मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए बाहर निकले। हमने उठाया है पहला कदम इस मुल्क के लिए, यहाँ रहने वालों के लिए। यही वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। Breathe Pakistan. A Dawn Media Initiative. Let's weather the change together. अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम न्यूज आए। देखते रहिए डॉन न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को कल जमानत मिली और उसके बाद आज अडियाला जेल से उनको रिहा कर दिया गया। वो तकरीबन 9 माह अडियाला जेल में कैद रही। रिहाई से कबल ये एक खदशा या एक तासुर भी कायम था, जो पहले से कायम था, कि जिस अंदाज में पहले भी उनकी जमानत हुई लेकिन किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, आया आज वही सूरत हाल बनेगी या मुख्तलिफ होगी। लेकिन सेनेटर फैसल वावडा, जो बहुत सारी खबरें वक्त से पहले ही मीडिया पर आकर बयान करते हैं, उन्होंने कल ही ये दावा कर दिया था कि बुशरा बीबी को और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो रिहा होंगी, बाहर भी आएंगी और ये सब कुछ एक डील के तहत हो रहा होगा। सुनिए सेनेटर फैसल वावडा ने कल क्या गुफ्तगू की। 26 तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रेगुलर लाइफ हो जाएगी, बेगम साहिबा बाहर आ जाएंगी। अब जब बेगम साहिबा बाहर आ जाएंगी
ये खान साहब को पता है या नहीं पता, दैट आई डोंट नो, ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सब कुछ स्टेज हो रहा है, ये सब ड्रामा है, ये सारा गेम है, ये सब सेटिंग का हिस्सा है। कुछ देर पहले भी फैसल वावरा एक टॉक शो में बात कर रहे थे और इन्हीं दावों को दोहरा रहे थे। अब हम आज के प्रोग्राम में साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बुशरा बीबी की जो रिहाई है उसकी क्या अहमियत है आज पीटीआई के लिए। इसके बाद क्या वो जमात की क़यादत और सियासी मामलात को देखेंगी। इससे पहले भी हमने देखा इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी तरफ से पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसके हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात और शिकवों का इजहार किया गया था कि वो एक मुतहरिक किरदार नहीं अदा कर पा रहे अपने लीडर को जेल से निकालने के हवाले से। तो क्या अब इमरान खान की अहलिया ये जो तकसीम है या ये जो खदशात हैं उनको दूर करने के हवाले से कोई किरदार अदा करेंगी या मामलात पार्टी के अपने हाथ में संभालेंगी। आईनी तरमीम के हवाले से भी हम बात करेंगे। इसमें इसके हक में वोट देने वाले जो मुनहरिफ अरकान हैं पीटीआई के उनके हवाले से पार्टी क्या कार्रवाई करने जा रही है और कार्रवाई जिसका ऐलान किया गया था वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। और सबसे इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे नए नामजद चीफ जस्टिस या आफरीदी के हवाले से पीटीआई क्या तवक्कुआत रखती है। कल शुएब शाहीन साहब एक टॉक शो में ये कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन के में ज़रूर शमूलियत अपनी इख्तियार करेगी पीटीआई। तो क्या वजह थी पॉलिटिकल कमेटी में जहां जज साहब को नामजद करना था वहां नहीं बैठे। क्या जुडिशल कमीशन के हवाले से पीटीआई अपनी जो है वो उसके अंदर शिरकत करेगी। दूसरी तरफ एक और अहम खबर अमरीका से सामने आई। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए सदर बाइडन को खत लिखा गया और इस पर रद्दअमल भी आ चुका है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। जो फॉरेन ऑफिस का रद्दअमल है उसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं और ये जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर तबसरा करना सिफारती आदाब के खिलाफ है। साथ ही ये भी कहा गया कि अमरीकी कानून साजों का इमरान खान की रिहाई के लिए बाइडन को ख़त लिखना भी सिफारती आदाब के खिलाफ है और इसको जोड़ा गया है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हवाले से। याद रहे इससे पहले भी जो करारदाद अमरीका में आई थी इसी एतबार से और पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से उस पर भी दफ्तर खारजा ने इसी किस्म का रद्दअमल दिया था। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो पीटीआई के सीनियर असद कैसर साहब हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉन के सीनियर नुमाइंदे वाशिंगटन से हमारे साथ होंगे। उनसे इसकी क्या अहमियत है उस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जब असल रिवायती रेसिपीज की सबसे बड़ी रेंज मिले तो रोज बढ़े आपके खानों की शान। शान पाकिस्तान्स नंबर 1 रेसिपी मिक्सेस एक्सपोर्ट ब्रांड। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले सालन से लेकर कीचड़ तक हर तरह के जिद्दी दाग। तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। Trust me, Keratin Smooth। आज मैं इसे कुछ कह क्यों नहीं रही ताकि ये कल खुद उठना सीखे। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बढ़ते स्कूल एज चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रहेंगी। नीडो न्यूट्रिशन टू ग्रो। पराठा पार्टी करूंगा, सैंडविच से पेट भरूंगा। अरे मारे गए। कनॉन नूडल्स के 4 पैक्स अब सिर्फ 199 रुपए में। होगा 199 रुपए का, मुझे क्या। दुनिया के कोने कोने से हम चुनते हैं सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी अज्जा जिससे असल रिवायती जायका बने। हर किचन की शान। शान पाकिस्तान्स नंबर